اس پہ ایمان لانے سے، اس کے حکموں پہ عمل کرنے کے وسیلہ سے ہم خوش ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ دنیا کے کسی اور قبیلے کو، کسی ملک کو، کسی قومیت کو یہ شرف حاصل نہیں جو خداوند کے لوگوں کو ہے کہ جو اس میں رہتے ہیں وہ مسرور رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر، ایک بہت ہی اہم بات کے اوپر جو ہماری زندگیوں میں بار بار خطائیں کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور ہمارے بدن کا وہ ایک خاص اعضاء ہے جس کے سبب سے ہم گناہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے جی؟ زبان۔ زبان ایک ہمارے بدن کا ایسا عضو ہے جس کے سبب سے ابلیس ہمیں بار خدا کے کلام کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ آمین۔ جو لوگ بائبل اپنی لینا چاہتے ہیں ابھی لے سکتے ہیں، اور پھر پلیز تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ کوشش کریں گے کہ آج اس کو جلدی کلوز کریں، کیونکہ اس کے بعد آگے بھی ایونٹ ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ پورے بدن کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ یہ چلتی بھی نہیں ہے پاؤں کے بل، لیکن پھر بھی پاؤں سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہاتھوں سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، لیکن زمین پہ نہیں چلتی، بلکہ زبان منہ کے اندر رہتے ہوئے ہی اتنا کچھ کر جاتی ہے کہ پھر انسان کسی لائق نہیں رہتا، کسی اچھی طرف جانے کے لائق نہیں رہتا۔ اور اسی زبان سے ہماری زندگی اور موت کا بھی تعلق جڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے کہ موت جو ہے وہ خدا سے دوری ہے، یعنی کہ یہ زبان جو ہے ہمارا یہ اہم عضو جس کو ہم استعمال کر کے تو اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا کسی تک بھی پہنچاتے ہیں، وہ اس زبان کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں گے۔ زبان کے حوالے سے بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ میرے ساتھ نکالیے امثال اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ جی مائک ریڈی کر دیا کریں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ امثال اس کا 18واں باب اس کی 21ویں آیت پہ غور کریں گے۔ بائبل مقدس ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری زبان کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے کیا سکھاتی ہے، بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ جی، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ امثال 18 باب اس کی 21ویں آیت غور سے سنیے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں۔ کس کے قابو میں جی؟ زبان کے قابو میں ہے۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ موت اور زندگی کس کے قابو میں جی؟ یعنی کہ اگر آپ نے خدا سے دوری کرنی ہے تو بھی آپ کی زبان کے قابو میں ہے۔ اگر خدا سے نزدیک، زندگی خدا کے قربت ہے اور موت خدا سے دوری ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ خدا کی نزدیکی بھی اسی زبان کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، ادھر دھیان نہیں ہے آپ لوگوں کے، ایسے میسج میں نہیں سناؤں گا، معذرت چاہتا ہوں اس سختی کے لیے، لیکن آپ کی بھلائی کے لیے مجھے یہ سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جو لوگ سکھانے والے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا اس بات کا کہ اگر میں آپ تک یہ بات صحیح طور پہ نہیں پہنچا سکتا، آپ کو نہیں سمجھا سکتا، تو آپ کی قیمتی جانوں کا حساب مجھے دینا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی بچوں اور آپ بھی بچیں، تو پھر پلیز غور سے سنیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس بات کو سمجھیں، بائبل کی ہر ایک بات، ہر ایک میسج جو ہے وہ آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے ہے۔ جی، تو کہتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، یعنی کہ زندگی خدا سے قربت اور موت کیا ہے؟ خدا سے دوری۔ کیا ہے جی موت؟ خدا سے دوری۔ اور کس کے قابو میں؟ یہ کس کے قابو میں؟ زبان کے قابو کے اندر ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، یعنی کہ ہر وہ بات جو بائبل مقدس کے خلاف جاتی ہے اس کو نکالنے سے گریز کرتا ہے، تو پھر وہ زندگی کی طرف چلتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی باتیں، ہلاکت کی باتیں کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، تو پھر وہ موت کی طرف جاتا ہے۔
आगे बढ़े। और जो उसे दोस्त रखते हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। उसका फल खाते हैं। जबान का फल कभी किसी ने खाया है? सुना है कभी जबान का फल? यहाँ बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मौत और जिंदगी जबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं। किसको जी? आप किसी दोस्त का कभी बुरा नहीं सोचते, कभी आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते कि जिससे आपके दोस्त का दिल दुखे, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत होती है। क्या होता है जी? आपको उनसे मोहब्बत होती है, या अपनी बीवी या अपने बच्चे या माँ बाप या बहन भाई। क्या कोई शख्स अपने बाप को गाली देता है? देते हैं बहुत से लोग, सुने हमने, बहुत से लोग देते हैं। बहुत सी बहुएं जो हैं वो अपनी जबान से अपने ससुर को, जो उसके बाप की जगह पे, और वही ससुर भी, सिर्फ बेटियां नहीं, बहुएं नहीं, बल्कि ससुर भी और सास भी अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करके तो फिर क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? जिंदगी हासिल करते हैं या मौत हासिल करते हैं? मौत। आज अगर हमारी जबान हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फिर हम चाहे गैर जुबानों में दुआ करें, चाहे हमारे पास नेमतें हो, चाहे हमारे अंदर ईमान इतना मजबूत हो कि हम उस बीमारी के पहाड़ को हटा सकें, लेकिन अगर हमारी ज़बान हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फिर हम जिंदगी के वारिस भी नहीं हैं। साल 16 की 2, हालेलुया। इंसाल 16 की 2 ज़बान के बारे में और थोड़ा सा सीखेंगे। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं। जब इंसान बोलता है, बात करता है, तो उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। हर इंसान ये कहता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चलने वाली बात उसको ये बताती है कि तेरी रविशें ठीक है, लेकिन सामने वाले की ठीक नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कहा जाता है कि इंसान की सब रविशें उसकी अपनी नज़र में ठीक है, खुदा की नज़र में नहीं है। आगे बढ़े। लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। हालेलुया। खुदावंद क्या करता है जी? रूहों को जांचता है। खुदा हमें अच्छे तरीके से जानता और पहचानता है कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। और याद रखिए, जिस इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी जबान उसके अपने काबू में नहीं है, वो इंसान कभी भी जिंदगी की बरकत से मुलब्बस नहीं हो सकता, जिंदगी की बरकत को हासिल नहीं कर सकता। और इसके बारे में याकूब के खत की तरफ चलेंगे, फिर वापस बाद में मिसाल में आएंगे। याकूब के खत में आइए, बहुत खूबसूरत बातें याकूब के खत में लिखी हैं इस जबान के बारे में। 3 बाब की 4 आयत से पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे जबान की जरा तशरीह अच्छे तरीके से करता है। ये वर्सेस आपने पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आपने ये भी देखा होगा, आज का जो दौर है बहुत जदीद दौर है। अब ये जो पंखा है, ये कितना बड़ा पंखा है और कितने लोगों को हवा दे रहा है। अगर इसका बटन ऑफ कर दिया जाए तो ये आपको हवा देगा जी? देगा? ये पंखा किसके काबू में आया हुआ? बेशक बाकी सब चीजें भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन इस बटन का भी अपना एक काम ना है। बिजली सप्लाई करता है, बस ये बेचारा विच ऑन ऑफ वास्ते काम बंद। आमीन जी। के बैठे हुए हैं वो एक इस 10 रुपए के बटन के मोहताज है जी। अभी मैं इसको बंद कर दूं, ये हवा देना बंद कर देगा। और अगर इसी तरह हमारी जबान, जो पूरे बदन में छोटा अज़ा नजर आता है, लेकिन अगर इसको हम इसके जो खतरनाक बातें कहने वाले स्विच को ऑफ करेंगे, तो वो गर्म हवाएं जो निकलती हैं हमारे मुंह से वो बंद हो जाएंगी। आमीन जी। पढ़िए 4 आयत से। देखो जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं, ऐसा करे 3 से पढ़े, 3 आयत से पढ़ना शुरू। 3 बाब की 3 आयत से जी। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं। आपने देखा होगा जानवर को कंट्रोल करने के लिए ये जो बड़े बड़े बैल
जो काबू में नहीं आते, जो घोड़े काबू में नहीं आते, उनको नत डाली जाती है और घोड़े को तो लगाम डाली जाती है जुबान के अंदर, मुंह के अंदर, और जब उसको खींचते हैं तो वो वहीं पे उसकी ब्रेक लग जाती है जी। गाड़ी में भी लगाम होती है ब्रेक की सूरत में, पाँव से आप कर सकते हैं, हाथ से उसको रोक सकते हैं। 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होती है और जैसी ब्रेक दबाओ तो गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह ज़बान भी एक ऐसा अज़ू है जी। तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। एक लगाम से आप उसके पूरे बदन को घुमा सकते हैं, राइट या लेफ्ट। उसमें सिग्नल तो लगे नहीं होते, इंडिकेटर तो लगे नहीं होते घोड़े के अंदर, तो आपके हाथ में एक रस्सी होती है, उसको खींचना है तो जिस तरफ खींचेंगे घोड़ा उसी तरफ मूव करेगा। वो घोड़ा जो है वो इंसान से कई गुना ऊंचा, लंबा और चौड़ा होता है, तो वो एक इतनी सी चीज़ के साथ काबू किया जा सकता है। तो ये ज़बान भी एक ऐसा ही अज़ू है जिससे आपकी पूरी बॉडी को जिंदगी की तरफ ले जाया जा सकता है जी। देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं, देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया तो से, भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से, मांझी की मर्जी के मुआफिक मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। घुमाए जाते हैं। यानी कि पूरी एक समझ लें कि एक पूरी कॉलोनी जितनी जगह उसके ऊपर होती है। बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज होते हैं, तो एक एडा को सारा हैंडल होता है, उन्हें फ्राई जानते हैं है जी। इतने बड़े जहाज को वो एक हैंडल के जरिए ही, इस पतवार के जरिए ही घुमाया जाता है। जो उसके ऊपर उन्होंने सिस्टम लगाया होता है, उसको जब घुमाते हैं पतवार को तो वो उसका रुख चेंज होता है, तो हवा उसको दूसरी तरफ ले जाती है। हमें पढ़े जी। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी कहता है कि इसी तरह जबान क्या है जी, एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। और बड़ी शेखी मारती है। शेखी का पता जी, शेख चिल्ली जड़ा होंदा है, अंदरों खाली होंदा है लेकिन कहना जी मेरियां जेबां भरियां जी। ओ जी बहुत खुदा दा करम है जी। घुमंड और तकब्बुर से भरा होता है शेखी मारने वाला शख्स, और जब उससे कोई उधार मांग ले ना 500 रुपये, तो कहेगा ले सैलरी नहीं हुई है, तनख्वाह नहीं हुई भाई अभी तक, वो आज अकाउंट बैंक बनता। मुझे एक शख्स याद आ गया, हम लोग तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है, तो एक जगह पे काम करते थे, तो एक दोस्त हमारा बना, तो उसने सोने की चेनें पहननी, अंगूठियाँ पहननी, और हर बंदे को उसने कहना भाई अगर सैलरी ना हो ना तो मेरे पास पैसे हैं मुझसे ले लेना, उधार दे देता था। लेकिन वो 1-2 बंदों को उसने उधार दिया, तो उसके बाद वो हर बंदा उसके पीछे, अब वो जान छुड़ाए और बाकी उसके पीछे। तो मैंने उसको कहा यार तूने इतनी शेखियाँ मारी क्यों, जब तेरे पास पैसे ही 5-6 हज़ार हैं तो तू सबको कहता फिर पूरी फैक्ट्री के अंदर कोई टेंशन नहीं लेना, मुझसे ले लेना। तो फिर उसने बहाने क्या करने, बहाने उसने करने जी वो आज बैंक बंद है, मेरा ATM घर पे रह गया, 100 बहाने करके शेखियाँ मार के, यानी कि अपना आप बड़ा करके। तो फिर जब आप ऐसा करते हैं तो ये शेखी मारने वाले के दिन सिर्फ 3 या 4 ही होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, लोग उसको बातें करते हैं, और यार तू बह जा यार 5,000 तो खोले, और जब भी चाय पीनी है तो उसने 1,000 का नोट निकाल लेना, 500 का नोट निकाल लेना। तो हम उसको कहते थे यार रख ले, मेरे पास 50 रुपये खुले हैं, हम पी लेंगे चाय। हालेलुया। शेखी मारने वाले लोग बहुत होते हैं, ये भी जबान से ही, अपनी इसी जबान से निकालते हैं जी। आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती एक है। माचिस की तीली आप जला दें, तो किसी जगह पे ऐसा आप आग लगा दें, जंगल के अंदर आग लगा दें, तो वो पूरा जंगल जो है वो खाकसर हो जाएगा। एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला देती है, पूरे जंगल को जला देती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपने देखी हैं जलते हुए एक ही चिंगारी से। वो कितनी सी होती है चिंगारी, कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, और वो आग कितनी लगाती है कि पूरा घर। और ये जबान कितनी सी, इतनी सी। इसने पूरी डिनोमिनेशंस, चर्च की इंतजामिया, मियाँ बीवी के रिश्ते, माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते, बहन भाइयों के आपस में रिश्ते तबाह कर दिए हैं। इसी एक जबान ने रिश्ते तबाह कर दिए। इसी एक जबान ने आपको जिंदगी से दूर करके मौत के करीब कर दिया है। और आज हमें इस बात को समझना है कि हमें अपनी जबान को काबू कैसे करना है जी। आगे पढ़े। जुबान भी एक आग है। जुबान क्या है जी, बाहों वाला लगी नजर आंदी इधर है,
नहीं ये दूजिया नु लांदी अपने आप नु कुछ नहीं होने देनी जी। आगे जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। ज़बान हमारे अज़ाओं में शरारत का एक आलम है। एक बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा इल्म है हमारी ज़बान। और ऐसी ऐसे झूठ, ऐसे ऐसी मुगलज़ात, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी फरेब की बातें कहती है जिसको सुनने के बाद इंसान सुन्नी पड़ जाता है कि अब मैं इसको जवाब क्या दूं, अब मैं इसको जवाब क्या दूं। और देखें खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब किया जा रहा था, मेरी तरफ देखें प्लीज, जब कोई उठ के जाता है तो उसकी तरफ मत देखा करें। जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसको कह रहे थे बोल, नबूवत कर, बता किसने मारा। उसने अपनी जबान को कंट्रोल में रखा, काबू में रखा। इब्लीस उसको आजमाने के लिए आया और उसने अपनी जबान को कंट्रोल में रखा। कुछ उसको गलत नहीं कहा, बल्कि उसको कलाम की बातें, जो बाइबल मुकद्दस की बातें हैं, वो उसको बताई और उसे शर्मिंदा किया। अज़ा में शरारत का एक आलम है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। सारे जिस्म को दाग लगाती है। हमारा पूरा ड्रेस वाइट हो और एक छींट गंदे पानी के ऊपर गिर जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, ओहो हो, ये क्या हो गया ना जी। पूरा ड्रेस हमारा दागदार हो जाता है। ये ज़बान भी कुछ इसी तरह है और ये बड़े बड़े अनोखे काम करती है जी। और दायरा दुनिया को आग लगा देती है जी, और जहन्नम की आग से जलती रहती है। इसकी आग से जलती है जी। ज़बान हमारी जहन्नम की आग से जलती रहती, हर वेले आग बरसाती रहती है। हर वेले एक दूसरे की बुराई करने में हर वक्त रेडी रहती है। बस इशारा मिलना चाहिए, है जी, इशारा मिलना चाहिए। क्या पास्टर साहब तुहाडे बारे जो बंदा है कहन जैसे, अच्छा मिलना उन्हें मेरे बारे च इंज कहा कि किसी दी सस ने कुछ कह दिता, रिश्तेदार ने कुछ कह दिता, अच्छा यार मेरे अगे तो बड़ा मिठा है, तो पीठ पीछे बुराइयां कर दे। कहते हैं ना या नहीं कहते? आप खुद अपने अपने गौर करें अपनी अपनी जिंदगियों के ऊपर। हमारे अंदर भी ये आग से भरी हुई एक ज़बान है, मुझ समेत, मैं भी आपके अंदर ही शामिल जी। क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। आपने देखा होगा सांप को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इतना जहरीला होता है, लेकिन इंसान उस पर भी काबू पा लेता है, उसको भी पकड़ लेता है और वो भी बेचारा अपने वसों बाहर हो जाता है। इंसान इतना पावरफुल खुदा ने बनाया। बड़े बड़े जानवर आप देखें, शेर बब्बर को भी सर्कस का बंदर बना देते हैं ना। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर ये अक्सर इलाकों में आके लगाते हैं। यही इंसान बहुत पावरफुल है और अपनी हिकमत से जो खुदा की तरफ से उसको दी गई है, बड़ी बड़े जानवरों को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन नहीं काबू चांदी थे, ये ज़बान नहीं काबू चांदी, आदमी काबू में नहीं कर सकता। ओह हालेलुया। क्या लिखा जी? मगर ज़बान को कोई एक भी आदमी काबू नहीं कर सकता जी। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर चतर चलती है, कैंची ना भी तेज चलती है, टर की तरह चलती है, बोलती जाती है और गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। एक ज़बान के सबब से हमारा पूरा बदन गलाजत में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे अभी खुदा का कलाम सुनाऊं और बाहर जाते हुए किसी से मेरी झगड़ा हो और उसी ज़बान से मैं उसको गाली दे दूं, तो मुझे बताएं ज़रा, मुझे कितना सवाब मिलेगा? मेरा ये सारा किया धरा ख़त्म हो जाएगा। और यही इब्लीस हमसे करवाता है जी। 8वीं से, वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। बड़ी बड़ी बलाओं से भी बड़ी ये बला है ज़बान। हम कहते हैं जी ओ 1 लाख का लश्कर है जी पास्टर साहब उसके अंदर, वो जी वो बड़े बड़े जादूगर हैं जी उसके अंदर, बड़े बड़े चिल्ले करते हैं, ये जाती नहीं है। मैं कहता हूँ वो चली जाएगी, लेकिन ये ज़बान की गलाजत नहीं जाती, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये आदमी के काबू में नहीं जी। ज़हर कातिल से भरी हुई है, इसी से हम खुदावंद बात की हम्द करते हैं। ओ हालेलुया, इसी से कहते हैं हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो।
इसी से कहते हैं कि मैं तो सारा दिन दुआएं करता हूँ, मैं तो सारा दिन बाइबल मुकद्दस पढ़ता हूँ, मैं तो सारा दिन हम्दो सना करता हूँ, और इसी ज़बान से फिर आगे मैं क्या करता हूँ, ज़रा ये भी देखिए। और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा और हुए इसी हैं ज़बान से जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। बददुआ देता हूँ, जा तेरा कुछ भी ना बचे। देते हैं ना, तेरा कख भी ना बचे। कख की हुंदा है, बिल्कुल छोटा जर्रा सा होता है कख, तेरा कख भी ना बचे। देते हैं ना बददुआ। और खुदा की सूरत में बनाए गए लोग हैं और बददुआएं देते हैं। मेरे नाल तू चंगा नहीं किया भाई, तेनू वेखी रब ने कितनी सजा देनी। कहते हैं ना भाई, हाँ जी बहनों, कहते हैं ना ये बात। इधर प्लीज खामोशी इख्तियार करें, बाइबल की बातों को गौर से सुने जी, आगे पढ़ें। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। मुबारक होए जी, आगे। ऐ मेरे भाइयों, है मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए ऐसा ना होना चाहिए क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और कि किसी जगह ते तुसी बोर कराओ ते उत्ते मिठा ते खारा पानी इकट्ठा निकल सकता जी। रुपया 70,000 लाया होए, जमीन खारी होए ते ख्वाहिश मिठे दी हुंदी है। पादरी साहब ये ते दुआ करो तो खुदा करे पानी मिठा निकल आए। इसी तरह हमारी जिंदगी भी इसी जमीन की मानिंद है जो खारे और मीठे से भरी हुई है, 50-50। क्या करते हैं हम? इसी जबान से गालियां देते हैं, इसी जबान से अबलीस की हमदोसना करते हैं। अबलीस की हमदोसना क्या है? ये जो आज आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा किस्म के गाने लगते हैं, ऊंची आवाज में गाने लगा के डांस करते हैं, नाचते हैं, इसी जबान से करते हैं सब कुछ। करते हैं या नहीं करते? शादी ब्याह में हम सारी वसीयत भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं शादी ब्याह में, सालगिरहों में। हुण यसू तू जरा आराम करते ही, जरा अपना काम कर लीजिए। मैंने सुना है बहुत से लोगों से ये बात करते हुए मजाक में ठट्ठे में उड़ाते हैं खुदा के कलाम को। पहले बाइबल मुकद्दस, पहले मीटिंग्स रखवा लेते हैं और बड़ा एक अच्छे, और ऐसे लगता है कि जैसे इन जैसा पारसा दुनिया में कोई नहीं। और करते क्या हैं जी? करते क्या हैं? पहले हमदो सना, उसके बाद मैसेज, और उसके बाद फिर चलो जी रात अपनी ही है ना, है जी, रात अपनी ही है ना। एक छोटे से वायरस ने इंसान को पैक करके रख दिया। बड़ी बड़ी जगहों पे जो गुनाह हो रहे थे इसी जबान के सबब से हो रहे थे। इतने लोग गुनाह और दलदल के अंदर फंसे हुए थे और खुदा ने एक वायरस के जरिए सबको बंद कर दिया। और फिर लोग रोए, खुदकुशियां की कि अब हम क्या करें। और इसी गलाजत से, इसी गुनाह आलू जिंदगी से जो रातों को जाग जाग के होती थी, इसी कराची शहर में भी होती थी, अब भी होती होंगी चुप छुपा। लेकिन अगर इंसान कोशिश करे, अगर इसी की 2 आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कामिल इंसान वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता। पढ़ दें जरा इसको, कंप्लीट कर दें 12 आयत तक। ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर? क्या आपने देखा है कभी कि किसी सेब के दरख्त में केला लगा हो या आम के दरख्त के अंदर अंगूर लगे हो? कभी देखा आपने? यानी कि अगर हमारे अंदर से, हमारी जबान में से गलत बातें निकलती हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद तो ऐसा नहीं करते, खुदा के फर्जंद ऐसा नहीं करते जी। ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं जी। इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसी तरह खारी चश्मा से जो बोर करांदे हो तो एक ही किस्म का पानी निकलता है जी। हमारा बदन भी इसी ज़मीन, इसी मट्टी की मानिंद है कि जब हम इसी ज़बान से मीठा पानी क्या है? मीठा पानी है क्या? मुबारकबादियाँ देते हैं लोगों को, खुश होते हैं, बड़ी मीठी ज़बान से बात करते हैं और थोड़ी देर बाद उसी ज़बान से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और लड़ाई झगड़े होते कैसे हैं? छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों को लेके आप कहीं घर गली में लाइन डाल रहे हैं, गलती से आपकी गेंदी दूसरे की लाइन पे लग गई। मैं पहले भी सोच रहा होता है लग गए तो सही, जरा मैं वेना वैसे खलोग, आज मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊँगा, हैं जी। और जब चर्च का पूछें तो कहते हैं जी वो पादरी साहब टाइम को नहीं जी, चर्च ड्यूटी लगी है।
اور جب لائن کی کھدائی ہو رہی ہو, پانی کی لائن ڈل رہی ہو یا گٹر لائن کے اوپر ذرا سا نشان بھی آ جائے نا, تو بھائی 10,000 لایا ایتھے پورے کر کے جا. کرتے ہیں نا, اسی سے کرتے ہیں. آپ اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے سارا کچھ یہ. جی آگے 13 سے 12ویں پڑھ دینا, ٹھیک ہے, ہو گئی. یاد رکھیے بائبل مقدس ہمیں ہماری زندگی جینے کے راستے بتاتی ہے. اور یہ بھی میں نے لاسٹ ٹائم جو میسج دیا تھا اس میں بھی یہ کہا تھا کہ جیسے زر دولت جو ہے وہ بدی کی جڑ ہے, اسی طرح ایک جڑ یہ بھی ہے جو ہمارے بدن کے اندر لگی ہوئی. کیونکہ پیسہ ہمارے بدن کے اندر نہیں لگا ہوا, لیکن زبان ہمارے بدن کے اندر لگی ہے. اسی سے ہم خدا کی طرف بھی جاتے ہیں. اور پھر آپ کی زبان کے اندر اگر مٹھاس ہے اور اس مٹھاس کو آپ لوگوں کے لیے جاری کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کام ہوگا, ان کی زندگیوں کے اندر کام ہوگا. ایک آیت اور دیکھیں گے, امثال 15 میں آئیے گا. امثال 15 کی پہلی آیت پڑھیے, پہلی 2 آیت. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے, پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. ایک منٹ رکیے جی. 15 آیت کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کیا ہے. نرم جواب, جواب کہاں سے دینا آپ نے, کہاں سے دینا جی, اسی زبان سے ہی دینا ہے نا. جی دوبارہ سے پڑھیں. نرم جواب, نرم جواب قہر کو دور کر دیتا اگر ہے. کوئی سخت زبان میں آپ سے بات کرتا ہے اور آپ اس کو نرم جواب دیتے ہیں تو وہ قہر جو جاری ہونے والا ہے آپ دونوں کے درمیان وہ قہر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اس قہر کو موقع نہیں ملتا کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے جواب جو ہے وہ بالکل پولائٹ اور نرم دیا ہے. آپ نے برائی کے بدلے برائی نہیں کی, آپ نے گناہ کے بدلے گناہ نہیں کیا, گالی کے بدلے گالی نہیں دی. اسی زبان سے اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ آپ اس قہر سے بچ جاتے ہیں. جی پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. کرخت باتیں کون سی ہوتی ہیں, یعنی کہ اگر کوئی آپ کو بری لینگویج میں بات کر رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ کرخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں. خادمین بھی یہ کرتے ہیں, پاسٹر حضرات بھی کرتے ہیں کہ کئی ایک سخت باتیں کسی کی ذات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, بیچ میں چرچ کے بیچ میں کھڑا کر کے بول دیتے ہیں تو تے اینجنا میں, اور خود وہ کیسا بھی ہو اس سے وہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کیونکہ پھر وہ حوالوں سے ڈراتے ہیں. خدا کے خادموں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی, بے شک نہیں کہنی چاہیے, یہ بات سچ ہے. لیکن یہ نرم زبان کی بات یہ سب کے لیے ہے, یہ خادموں کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے ہے. جی 2 آیت پڑھیں. دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے. دناؤں کی زبان جو ہے, جو خدا کی دانائی سے معمور ہیں, ان کی زبان کیا کرتی ہے جی, کیا کرتی ہے ان کی زبان؟ علم کا درست بیان کرتی ہے, صحیح تعلیم دیتی ہے, صحیح علم کی بات کرتی ہے. جی پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے. احمقوں کا منہ حماقت. حماقت کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ حماقت یہ ہوتی ہے کہ جیسے انسان اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے, وہ حماقت میں ہوتا ہے کہ جو میں کرن دیا ہوں سب ٹھیک ہے, دوسرا غلط ہے. 4 آیت پڑھیے. صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے. صحت بخش زبان کیا ہے جی؟ جو اچھے لفظ اپنے منہ سے نکالتی ہے, جو اچھی باتیں, جو خدا کے کلام کی باتیں, خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بری بات نہیں کہتی, وہ کیا ہے جی؟ صحت بخش زبان. زبان حیات کا چشمہ ہے, اور حیات کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی, خدا سے قربت. آمین. یہ آیت پوری کر دیں. پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے. پر اس کی کج گوئی یعنی کہ غلط باتیں, غلط بیان, غلط سب کچھ بیان کرنا, اس کی کیا ہوتا ہے جی؟ روح کی شکستگی, یعنی کہ روح اس کی شکستہ حالت میں ہو جاتی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی روح میں. یاد رکھیے میرے عزیزو, اسی زبان سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اسی زبان سے آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بڑی بڑی ہستیاں, بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی حکومتیں اسی زبان کے بنیاد پہ گر گئے ہیں. اسی زبان سے گھرانے تباہ ہوئے ہیں, میاں بیوی کی ریلیشن خراب ہوئی, اور ابلیس یہی تو چاہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو کھولیں اور غلط کھولیں. آخری حوالہ دیکھیں گے, میرے ساتھ نکالیے امثال 25.
آپ کی صحیح زبان، نرم زبان کیا کیا کر سکتی ہے؟ 15 آیت پڑھے، آخری والا ہوگا یہ. تھینک یو جیزس. ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے. تحمل کرنے سے کون راضی ہو جاتا ہے جی؟ حاکم راضی ہو جاتا ہے. اگر موجودہ حکومت کے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں گے، آپ کے تحمل مزاجی سے، آپ کی نرم زبان سے، وہ بھی آپ کے حق میں بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور یہ کہ اس کی مثال ہمیں یسوع مسیح کے ٹائم پہ بھی ملی. حاکموں کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے، اس وقت کے جو لیڈر تھے ان کے پاس لے جایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے. جی کمپلیٹ کر دیں. اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے. ہڈی یہاں تک کچھ سخت چیز وجہ نہ توڑ دی، یا انسان کسی سخت چیز سے ڈگ گیا تو پھر توڑ دی. لیکن بائبل کہتی ہے کہ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں بدل سکتا، یہ بہن کبھی نہیں بدل سکتی، یہ بھائی کبھی نہیں بدل سکتا، ہم نے تو 10 سال کو اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں بدلا. آپ کی نرم زبان، میٹھی زبان ایک دن اس کو، اس سخت ہڈی کو بھی بدل دے گی، توڑ دے گی. ہاللیلویا. تو آج اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہمیں مسیحیت میں بڑھنا ہے، اگر ہمیں خدا کے کلام کے اندر مضبوط ہونا ہے، تو اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے. اگر اس زبان کو قابو میں نہیں رکھتے تو نہ پاسٹر قائم رہ سکتے ہیں، نہ کلیسیاں قائم رہ سکتی ہیں، نہ میاں بیوی کی ریلیشن آپس میں قائم رہ سکتی ہے، نہ دو سگے بھائی آپس میں قائم رہ سکتے ہیں، نہ سگے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. کوئی بھی رشتہ اس سخت زبان اور گناہ آلود زبان سے قابو میں نہیں آ سکتا. آپ بڑے سے بڑے بدتمیز آدمی کو بھی میٹھی زبان سے قابو میں کر سکتے ہیں. آپ کی زبان کے اندر اگر مٹھاس ہے تو سب اچھا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے.